مجھے تعجب ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں یمن یا ہیرا ہجرت کے لیے کیوں نہیں بھیجا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ راستے میں کہیں بچوں کی جانیں نہ تلف ہو جائیں۔ میرا قبیلہ کئی سالوں سے شام میں قیام پذیر ہے، اور ہم لوگوں کی تعداد بھی کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سب کا استقبال کر سکتے تھے، اسی لیے ہمیں حبشہ سے کیا واسطہ ہے؟ اسلام اگر عیسائیوں کے لیے قابل قبول ہوتا تو حجاز میں موجود ان کے ہم مذہب ہماری حمایت کرتے۔ حضور جبریل امین سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں، یعنی ان پر ایمان نہیں رکھتے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، ان پر ایمان رکھو۔ یمن پر ایرانی بادشاہت کا اثر ہے، اور مسلمانوں کے ایک طبقے کا یمن یا ہیرا میں موجود ہونا کسی لحاظ سے بھی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ شامی ہمارے حق میں کسی قسم کے ظلم سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ہم نے ایک ساتھ بڑا لمبا اور مشکل سفر طے کیا ہے۔ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی بے احتیاطی ہے؟ کیا ہوا؟ وہ کیا ہے؟ ارے میری بات سنو، سنو میری بات، سنو میری بات۔ وہ کیا ہے؟ مکے والوں کا رہنما ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ فضیل کے خیموں میں جاؤ اور کہہ دو کہ آگ بجھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ کشتی کا مالک کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تمہیں کشتی کے مالک سے کیا کام ہے؟ ہمیں حبشہ جانا ہے۔ بھگوڑے غلاموں؟ بھگوڑے؟ نہیں، ہم بھگوڑے نہیں ہیں، نہیں۔ میرا نام جعفر ابن ابی طالب ہے اور اس جماعت کا سرپرست ہوں میں چاہتا ہوں ہمیں تم حبشہ پہنچا دو۔ جعفر ابو طالب کے بیٹے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ کا نام میں نے بہت سنا ہے، تمہیں حبشہ میں کیا کام ہے؟ جانتے ہو ہم حبشہ کے حاکم نجاسی کے لیے محمد ابن عبداللہ کا ایک پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کل چل پڑیں گے۔ لیکن بات یہ ہے ہم ٹھہر نہیں سکتے، یہ بہت فوری کام ہے، ابھی چل پڑیں۔ آپ سے التجا کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں آپ سے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، آپ میری بات مانیں۔ رات کے اس وقت؟ تمہیں پتا ہے کشتی کو آمادہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تمہیں کل تک صبر کرنا پڑے گا۔ آپ سے گزارش ہے خدا کے واسطے ہم پر رحم کریں۔ اور ہاں، 4 آدمی کا کرایہ 1 دینار ہوگا۔ میں ہر 2 لوگوں پر 1 دینار دینے کو تیار ہوں، بشرطے کہ اسی وقت روانہ ہو جاؤ۔ 2 گروہ بنا لو اور ہر گروہ دونوں کشتیوں میں سے ایک میں بیٹھ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اٹھو اٹھو اٹھو، آج رات کو ہی چل پڑیں گے۔ ارے اٹھو بھائی، تم لوگ سب اٹھو، جلدی کرو، جلدی اٹھو اٹھو اٹھو۔ ارے بھائی اٹھو اور کشتیوں کو تیار کرو، ہم ابھی حبشہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان 2 کشتیوں کو یہاں سے بھاگنے مت دو۔ یہ کیسی آواز تھی؟
लगता है वो आ रहे हैं। सलाम हो मक्के के बुजुर्गों पर। क्या तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया? बोलो जल्दी क्या हुआ, बोलो। हम बहुत देर से पहुंचे। वो 2 कश्तियों के जरिए हबशा की जानिब रवाना हो गए। लानत हो ऐ नालायकों। किस्मत ने उनका साथ दिया, वरना हमने कोताही नहीं की थी। देखते हो, कभी हफ्ते में 1 कश्ती भी रवाना नहीं होती है, लेकिन आज रात 2 कश्तियां चली गईं, वो भी ऐसे मौके पर कि गुमराह लोग बंदरगाह पहुंच चुके थे। लानत हो ऐसी किस्मत पर। आप लोग फिक्रमंद ना हो, पुरसुकून रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारी जहमतें जरा बढ़ गई हैं। कंजूसी से काम न लें, सोने के सिक्कों की थैलियां जरा खोल दें, बस। तुम्हारा मतलब क्या है? उनको हबशा से वापस ले आएंगे। ये मुमकिन नहीं है। अब हमारे हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। नज्जाशी उन लोगों को हमारे हवाले नहीं करेगा जो उसके पास पनाह लेंगे। इसका भी एक रास्ता मौजूद है। नज्जाशी के दरबार में हमारे कुछ दोस्त हैं। बेहतर है अम्र इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया को भारी तोहफों के साथ नज्जाशी के दरबार में भेजें। दोनों मक्कार अशखास तजर्बेकार और अय्यार हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो भागने वालों को साथ लेकर लौट आएंगे। कैसा रहेगा? तुम लोग मुवाफिक हो? हाँ, हम रवानगी के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त है। दोनों तैयार हो? तोहफे तैयार कर लिए? तुम्हें मालूम है कि नज्जाशी के साथ किस तरह बात करनी है। हाँ, आप फिक्रमंद ना हो। इस सफर का अंजाम तुम दोनों की जहानत व फतानत पर मुनस्सिर है। आप इस बात से बेफिक्र रहें। मैं और इब्न रबिया इस सफर की अहमियत से अच्छी तरह आगाह हैं। जब दरबारी हमारे तोहफे वसूल कर लेंगे तो आप मुतमईन रहें कि वो खुद नज्जाशी को आमादा करेंगे कि वो मुहाजिरीन को निकाल दें। तुम लोग इस हद तक अपने आप पर यकीन न रखो और काम को आसान न समझो। मुहाजिरीन के ग्रोह का सरबरार जाफर है। उसको फन्नी खिताबत अपने बाप अबू तालिब से विरसे में मिला है। मुझे नहीं लगता है कि वो बेकार बैठा रहेगा और तुम लोग अपने मकसद को हासिल करो। ऐसा आपका सोचना है। शायद वो खिताबत में हम पर बरतरी रखता होगा, लेकिन दरबारी ज्यादातर हमारे हाथ की तरफ देखेंगे। अच्छी और पुरमग़्ज़ बातें एक तो ही दस्त के मुंह से जो निकलती हैं, उनकी हैसियत ऐसे ही होती है जैसे पानी का बुलबुला। किसी को क्या पता, शायद अमरा सही कह रहा है। आलमपना नज्जाशी आज़म तशरीफ ला रहे हैं। हम आपकी शान और शौकत के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं। ऐ अजीम व आदिल इंसाफ पसंद बादशाह नज्जाशी आजम आलम पना, हाल ही में हमारे कुछ नातजुर्बेकार और अक्ल से आरी नौजवानों के एक गिरोह ने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर एक नया दीन कबूल कर लिया है।
जो न आपके मुल्क हबशा के सरकारी दीन से शबाहत रखता है और ना ही हमारे आबा व अजदाद के दीन से। इस ग्रोह का मकसद इख्तलाफ पैदा करना और मक्के की हुकूमत हासिल करना है। इसके अफराद आपके मुल्क में पनाह गुज़ी हो चुके हैं ताकि आज़ादी और हबशा के पुरअमन माहौल और आप जो दूसरों के नज़रियात का एहतराम करते हैं उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए आपके बड़े मुल्क में अपने ख़तरनाक दीन को फ़रोग़ दे सकें। और इसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? मैं मक्के के अकाबरीन की जानिब से हबशा के ताकतवर बादशाह आला हजरत नज्जाशी आज़म की खिदमत में, जो कि हबशा के ताकतवर और बिला मुनाजा बादशाह हैं, सलाम पेश करता हूँ और आला हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन खतरनाक अफराद को निकाल देने के अहकामात जारी फरमाएं और उनको हमारे हवाले कर दें ताकि हम अपने मुल्क में उनको ज़रूरी हिदायत के ज़रिए अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ लौटा सकें। इस तरह इस मुल्क में हमारे दुश्मन कोई मरकज़ हासिल नहीं कर सकेंगे और आपके साथ हमारी दोस्ती पायदार रहेगी। उम्मीद है आप इनायत फरमाएंगे। आलम पनाह, मक्के के साथ हमेशा हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। इन तखरीबकारों की हबशा में कोई जगह नहीं है आलम पनाह। मुनासिब होगा कि आलम पनाह नज्जाशी इन लोगों को जितना जल्दी हो सके हबशा से निकालने का हुक्म सादिर करें। आपके ख्याल में हमारा अंजाम क्या होगा जाफर? क्या नज्जाशी हमें मक्का वालों के हवाले कर देंगे? पुरसुकून रहो, रसूल खुदा नज्जाशी जैसे शख्स के बारे में गलती नहीं करेंगे। तुम मुतमईन रहो। जिस दिन हुजूर ने हमसे हबशा जाने का फरमाया, आपने इस दिन के बारे में भी सोचा था, वरना वो हमें यमन, हीरा या किसी और जगह पर भेज सकते थे। तुम अपने आप पर खौफतारी होने न दो, खुदा पर तवक्कुल करो, खुदा पर तवक्कुल करो। पुरसुकून रहो, अपने आसाब पर काबू रखो, आसाब पर काबू रखो, खुदा पर भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, मुतमईन रहो। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, मजबूर लोगों का एक गिरोह मेरे मुल्क में पनाह लेने आया है, जो तुम्हारी नज़र में मुट्ठी भर शोरीसी और अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बातों को बगैर तहकीक और जायजे के नहीं मानूंगा, और जब तक तुम्हारा दावा मेरे लिए साबित नहीं हो जाता, मैं किसी सूरत में उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। पनाह गुज़ीनों को पेश किया जाए। आलम पनाह, आप क्यों अपने आप को जहमत देते हैं? तहकीक की जरूरत ही नहीं है। हमने हकीकत के अलावा आपसे कुछ नहीं कहा है। तो फिर उनका सामना करने से तुम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। पनाह गुज़ीनों को मेरे सामने पेश किया जाए, जल्दी करो। इताअत आलम पनाह। लानत हो शूर इस वक्त पर।